not a game, it's a rich thing. Hello everyone and welcome back to Saloni's Delight. I hope you're all doing very well. Today's video is going to be a special one as we dive into the CBSE board question papers from the humanities stream, focusing on subjects such as psychology, political science, English, physical education and Hindustani music. I've got the question papers from the year 2023 and I'm excited to share them with you. But before we get started, I want to let you know that I've received requests from both the streams, medical and non-medical. So I'm happy to let you know that I'll be working on those videos as well. And if you're interested in them, please let me know in the comment section. Now, without any further ado, let's jump into the question papers for the humanities stream of the CBSE board from 2023. Stay tuned and let's make this learning experience together. Don't forget to like, share and subscribe to Saloni's Delight for more educational content. Let's get started. So let's start with your first board question paper, which is your class 12th psychology CBSE set 4, which is of 2023. Okay, मेरे पास set 4 है. सेट 1 अभी अवेलेबल नहीं है, सेट 2 सेट 3 कोई भी अवेलेबल नहीं है, मुझे डायरेक्टली सेट 4 मिला तो मैं सेट 4 से स्टार्ट करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. Okay, so this is your paper and I'll tell you how to attempt your paper in a appropriate manner. Okay, so this is your class 12 psychology का question paper है and this is your set 4. Okay, before starting let me just, okay, yeah. So let's start with your psychology theory paper. As you know, it is of 70 marks and maximum marks is of 70 and time allowed is 3 hours. And first of all, you have to read the basic information given on the question paper. Okay, you have to check that there are 23 printed pages and you also have to write down the serial number of the question in the answer book before attempting the all these questions. Okay, and 15-minute time has been allotted to read the question paper before you start your question paper. So 15 minutes will be given to you for reading the question paper. Okay, then after that, you can start your question paper. You can start writing your answers on 10:30 a.m. Right? Whenever your teacher will say to start the question paper. Okay. So these are some general instructions. All questions are compulsory, as you know, except where internal choice has been given. जहाँ पर आपको internal choice नहीं दे रखी, मतलब आपको पता होगा कि और की ऑप्शंस आती है क्वेश्चंस में, राइट? तो जहाँ पे और की ऑप्शंस नहीं दी हुई है आपको, वहाँ पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी है, राइट? ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड ये आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई है. मैं आपको इस बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में बता देती हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन पेपर्स मैं शो करूंगी वो पॉलिटिकल साइंस के होंगे, इंग्लिश के होंगे, फिजिकल एजुकेशन के होंगे एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक के होंगे, राइट? तो फिर मैं ये वाले जो क्वेश्चन पेपर्स आपको दिखाऊंगी उसमें मैं आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शंस रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि मैं इस क्वेश्चन पेपर में आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई, सेक्शन एफ तक है आपके इस क्वेश्चन पेपर में. तो आपके सेक्शन ए में ये जनरली बता रखा है क्वेश्चन नंबर 1 to 18. ये सिंपली आपको रीड करना है, नहीं करना तो इट्स योर ओन पर्सनल चॉइस. तो आपका सेक्शन ए में 1 to 18 जो है 1 मार्क के क्वेश्चन है. ठीक है, एंड एमसीक्यूज है बेसिकली, क्योंकि हमारे 2023 में जब बोर्ड के पेपर हुए थे तो फर्स्ट सेक्शन जो ए था उसमें सारे एमसीक्यूज थे, 1 मार्क क्वेश्चन थे. फिर हम धीरे धीरे 2 देन 3 मार्कर देन 4 मार्कर एंड देन 5 मार्कर देन 6 मार्कर, राइट? तो ऐसे से क्वेश्चन है हमें, केस बेस्ड भी थे. तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पैटर्न कि अब पैटर्न चेंज हुआ है, क्या हुआ है, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, लेकिन 2023 में ऐसे था. सो 19 टू 23 जो आपके क्वेश्चन नंबर है, जो आपका सेक्शन बी में आएगा, वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे एंड दीस क्वेश्चंस विल कैरी 2 मार्क्स ऑफ एवरी क्वेश्चन. ओके, एंड हियर इट इज रिटन यू शुड नॉट एक्सीड 30 वर्ड्स. आप 30 वर्ड्स तक लिखेंगे तो बेटर होगा. अगर आप 35-40 वर्ड्स तक लिख रहे हैं अपना आंसर, देन इट इज ऑल्सो फाइन. ऐसा कुछ है नहीं कि आपके मार्क्स कट जाएंगे ऐसा, बट जितने वो भी उन्होंने वर्ड्स मेंशन किए हैं आप उतने में लिखें तो बेटर है. आई सजेस्ट यू टू डू दैट ओनली. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 24 टू 27 इन सेक्शन सी आपको मिलेंगे. ठीक है, इसमें होंगे आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो 3 मार्क्स के होंगे. पहले आपके सेक्शन बी में 2 मार्क्स के थे एंड सेक्शन ए में 1 मार्क्स के थे, राइट? एंड इसमें जो आपकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड 60 वर्ड्स. ओके, इट शुड बी अप टू 60 वर्ड्स ओनली. एंड आफ्टर दैट आपकी सेक्शन डी में 20 टू 31 क्वेश्चन नंबर आएंगे आपके. इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे विच इज ऑफ 4 मार्क्स. ओके, तो ये आपकी जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आप रीड कर लीजिएगा. सेक्शन ई ऐसे है, इसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन है. सेक्शन एफ में आपके 2 मार्क्स के हैं. हर क्वेश्चन जो आपको मिलेगा, ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें केस स्टडी भी आए थे 2023 में जब हमने बोर्ड के पेपर दिए थे, तो उसमें केस स्टडीज भी आते थे. तो हर एक केस स्टडी में 2-2 क्वेश्चन होते थे जो 2-2 मार्क्स के होते थे. तो ये आपको एज इट इज आंसर करना है केस स्टडी पढ़ के. आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन पेपर. तो ये आपका सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. Ye Vijay's parents are confused as to what subjects should he choose in grade 11 to know where his strengths lie. The school counselor suggested that he take an aptitude test. What form of aptitude test do you think would be given to him?
इसमें आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, लाइक इट इज अ एमसीक्यू क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड, इंडिपेंडेंट, जनरलाइज्ड और वोकेशनल। जो भी आपको करेक्ट लगता है आंसर, मतलब जो भी आपने पढ़ा है अपने साइकोलॉजी में, और जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है वो आपको मार्क करना है, राइट? इट इज ऑफ वन मार्क, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो 1 मार्कर ही होंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये आई वांट टू टेल यू कि ये जो है आपका जो सीबीएसई का बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आता है वो इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने हिंदी लैंग्वेज को भी चूज किया होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने हिंदी लैंग्वेज को चूज किया वो हिंदी में पढ़ के आंसर दे सकते हैं या अपने आंसर शीट पे आंसर लिख सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश चूज़ किया वो इंग्लिश के क्वेश्चन्स पढ़ें। हिंदी में हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी उससे, ओके? सो यू डोंट नीड टू रीड दैट। अब देयर आर सम पीपल हू आर होस्टाइल, इगोसेंट्रिक एंड एंटी सोशल, दे आर सेड टू बी हाई ऑन। तो जो भी आपको आंसर करेक्ट लगता है इनमें से वो आप चूज़ करेंगे, राइट? सो ऐसे ही आपके 1 मार्कर क्वेश्चन्स हैं यहाँ तक। थर्ड वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए। द सेल्फ दैट वैल्यूज़ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स इज़ रेफर्ड टू एज़। ठीक है, तो वो कौन है? ये आपको 4 पहले तो आपको ये दे रखे कि वो पर्सनल है, सोशल है, फ़ैमिलियल है या रिलेशनल है, राइट? सो इसमें क्या है, आपको ए में दे रखा है कि क्या वो फर्स्ट और थर्ड है, मतलब क्या वो पर्सनल और फ़ैमिलियल है, या क्या वो सोशल और फ़ैमिलियल है, या फिर क्या वो फ़ैमिलियल एंड रिलेशनल है, या फिर क्या वो पर्सनल या रिलेशनल है। तो इसमें से जो भी 2 लगते हैं आपको कि हाँ, वो हैं, दे कैन बी रेफर्ड एज़ हू वैल्यूज़ फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स, तो वो आपको आंसर करेक्ट मार्क करना है, ओके? अकॉर्डिंगली जो भी आपने पढ़ा है। आफ्टर दैट ये आपका 4th क्वेश्चन आ जाता है, ये आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, ये हिंदी में आपका। मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें भी आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं कि इसमें क्वेश्चन है आपका कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट कोपिंग विद स्ट्रेस। ठीक है? नॉट ट्रू मीन्स इनकरेक्ट। ठीक है? तो आपको कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट लगती है? ये स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स, है ना? एक स्टेटमेंट भी दे रखी है, 2-3 या 2 भी दे रखी है। ठीक है? अब आपको ये 4 स्टेटमेंट्स दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दीस 4 स्टेटमेंट्स गिवन टू यू। ओके? तो पहली आपने स्टेटमेंट पढ़ी जैसे कोपिंग इज अ डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस। उसके बाद ये स्टेटमेंट पढ़ी, उसके बाद ये भी स्टेटमेंट पढ़ ली, उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट है इंडिविजुअल्स शो सिमिलैरिटी इन कोपिंग स्ट्रेटजीज दैट दे यूज टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो आपके पास इन्होंने 4 आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि आपके हिसाब से कौन सी इनकरेक्ट है। नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट, तो आपके हिसाब से कौन सी इनकरेक्ट है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों इनकरेक्ट है, या फिर थर्ड इनकरेक्ट है सिर्फ, या फिर सेकंड या थर्ड इनकरेक्ट है सिर्फ आपके अकॉर्डिंगली, या फिर फर्स्ट या सेकंड इनकरेक्ट। तो आपने जो भी पढ़ा है, आपको जितना भी आता है, आपको मार्क करना है करेक्ट आंसर। ओके, आफ्टर मूविंग ऑन टू आपका 6th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 1 मार्कर है, 7th भी ऐसा ही है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 8। Okay, let me explain it to you. Which of the following statements is or are true about the diathesis stress model? Okay, so इसमें आपको वैसी स्टेटमेंट्स दे रखी है, ठीक है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी ट्रू है, ट्रू मतलब करेक्ट। ओके, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। आपको पहले ये 4 स्टेटमेंट्स रीड करनी है अच्छे से, पढ़ना है इनको, ओके? कि which one do you think is the correct one to this question? ओके, तो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें भी। ओनली फर्स्ट इज़ ट्रू, आपको क्या लगता है कि फर्स्ट ट्रू है, ये फर्स्ट या थर्ड ट्रू है, दोनों ही ट्रू है, या फिर थर्ड ऑप्शन ये है आपके पास कि थर्ड इज़ ट्रू है सिर्फ, थर्ड स्टेटमेंट जो है आपके पास, या फिर सेकंड और फोर्थ दोनों ट्रू है। तो इसमें से जो भी आपका करेक्ट आंसर है वो आपने मार्क करना है, ठीक है? As I'm from medical background, let me remind you, I don't know about psychology. I'm just telling you how to attempt the question paper, and I don't know the answers. So please don't depend on me. If you need answers, you can drop down in the comments section. If you need answers, I can also provide you PDF. ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, ये भी आपको ऐसे करना है। 10th भी आप देख लीजिए एक बार। ये आपका है माइकल, एन 10-year old boy was diagnosed with a disorder where he has difficulty in perceiving and processing information accurately and efficiently. This impacts his basic skills of reading and writing, doing mathematics. Identify this disorder. आपको ये जो उसको हो रहा है ना, ये आपको बताना है कि उसको क्या हो रहा है, कौन सा डिसऑर्डर है ये बेसिकली, ठीक है? तो ये आपको 4 डिसऑर्डर दे रखे हैं। इनमें से आपका जो भी करेक्ट डिसऑर्डर है वो आपको मार्क करना है, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू, मैं इसीलिए धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन पेपर पूरा अच्छे से देख लें, पढ़ लें, एंड यू कैन आल्सो रिकॉग्नाइज कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है बोर्ड का, राइट? एंड लेट मी टेल यू कि आप जब आंसर्स लिखेंगे अपने, वो एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में होना चाहिए, सो दैट बोर्ड एग्जामिनर को पढ़ने में दिक्कत ना हो आपके आंसर्स। नेक्स्ट आपका आ जाता है असर्शन एंड रीजन। दिस इज द मेन क्वेश्चन, आई मीन इसमें आपको एक असर्शन दिया होता है, एक रीजन दिया होता है, ये आपको पता ही होगा। सिलेक्ट द करेक्ट चॉइस फ्रॉम ए बी सी डी, जो भी आपको दे रखे हैं ऑप्शंस, इसमें से आपको करेक्ट चूज करना है कि आपको क्या लगता है इन स्टेटमेंट को पढ़ के, ठीक है? तो आपका असर्शन क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थेरेपी, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय द फैमिली एंड सोसाइटी डेवलप core schemes core schemas what is this okay core schemas in the child which include beliefs and action patterns in individual in this therapy। रीजन आपको क्या दे रखा है? इस स्टेटमेंट का आपको रीजन दे रखा है। इन दिस थेरेपी इरेशनल बिलीव्स मीडिएट between antecedent events and their consequences, राइट? तो आपको इस स्टेटमेंट का रीजन दिया हुआ है,
Do you think this reason is appropriate to the given statement, to the given assertion? If you think so, you can mark both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion A. ठीक है? तो आपको आंसर ए मार्क करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न आई थिंक इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है? तो आपको ये मार्क करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि असर्शन ट्रू है, मतलब आपकी जो स्टेटमेंट है, ये ट्रू है और आपको रीज़न बिल्कुल फॉल्स लगता है कि हाँ, नहीं, ये तो नहीं होगा। आपको आंसर पता है कि क्या हो सकता है, तो आपको ये मार्क करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि असर्शन और रीज़न दोनों ही नहीं, 1 सेकंड, ओके, इसमें है कि अगर आपको लगता है स्टेटमेंट फॉल्स है, लेकिन रीज़न ट्रू है, स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन रीज़न जो दिया है वो सही है ना? तो आपको ये मार्क करना है। तो आपको अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट को पढ़ के, रीज़न को पढ़ के मार्क करना है। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन ही है। तो मैंने आपको असर्शन एंड रीज़न समझा दिए कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 ये भी आपको ऐसे ही मार्क करने हैं। यू कैन सी इट। आफ्टर दैट आई विल स्क्रॉल इट डाउन। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है आपका वाइज बिहेवियरल एनालिसिस कंडक्टेड टू ओवरकम स्ट्रेस क्यों किया जाता है? मैंने आपको समझा दिया। ये 4 आपको वैसे ही स्टेटमेंट्स दी गई हैं। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन से करेक्ट वन है। ठीक है? आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14 ये भी आपका असर्शन रीज़न है। इसमें आपको असर्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दी हुई है, उसके बेसिस पे आपको रीज़न दिया हुआ है। जौन-सा आपको लगता है कि सही है वो आपको मार्क करना है। Okay, so this is your 1 marker question and 15 is also 1 marker question, 16 is also 1 marker question. Okay, let me explain the 16th question to you. Which one of the following is not a factor that will lead to attitude change? आपको कौन सा लगता है कि इसमें से कौन सा फैक्टर नहीं होगा जो आपको एटीट्यूड को चेंज नहीं करेगा? ठीक है? जो आपको एटीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स, एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स या टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, आपको देखना है कि कौन-सा सही है, आपने जो भी पढ़ा है। अब ये 17th क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन है, इसमें भी 4 आपको दे दिया, चारों ऑप्शंस में से जो आपको सही लगता है, वो आपको मार्क करना है, राइट? अब आपका 18th भी असर्शन रीज़न है, तो मिक्स्ड आते हैं, ओके? एमसीक्यू भी आ सकते हैं, आपको असर्शन रीज़न भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है। ओके, नाउ इज़ योर सेक्शन बी जो इम्पोर्टेंट है डेफिनिटली। यहाँ से आपके 2 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें है आदिल अ यंग मैन शोज़ अग्रेसिव एक्शंस दैट थ्रेटन और कॉज़ हार्म टू पीपल और एनिमल्स एंड इंडल्जेस इन सीरियस रूल वायलेशंस। व्हाट आर दीज़ सिम्पटम्स इंडिकेटिव ऑफ? मेंशन 2 अदर टाइप्स ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। आदिल एक यंग मैन है, उसके बारे में बताया है आपको और आपको ऐसे 2 अदर टाइप्स के एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में मेंशन करना है। अब दैट 20th क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको और के ऑप्शन है, जौन-सा भी आपको बेस्ट लगता है, बेस्ट आता है सबसे अच्छे से वो आपको अटेम्प्ट करना है। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 21 इसमें आपको कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन व्हिच यू हैव रेड दैट अ क्लाइंट माइट बी एक्सपीरियंसिंग। ये भी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। ऐसे ही 22 क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है व्हिच इज़ योर 2 मार्क क्वेश्चन। लास्ट जो आपका सेक्शन बी में क्वेश्चन है वो डिफरेंशिएट बिटवीन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। आपको इसमें डिफरेंशिएट करना है अच्छे से प्रॉपर लाइन बना के, एक तरफ इन ग्रुप एंड द अदर साइड यू हैव टू राइट आउट ग्रुप एंड इसके सारे पॉइंट्स जो भी आपने लर्न किए हैं वो लिखने हैं वेरी नीटली। आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू योर सेक्शन सी, यहाँ से आपके 3 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें आपके क्वेश्चंस हैं 24, 25 फ्रॉम 24 टू 27 आपका सेक्शन बी है पूरा, जो 3 मार्क का क्वेश्चन है आपके। तो ये आपका 24th क्वेश्चन है एंड 25th क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन एनी 3 साइकोलॉजिकल मॉडल्स यूज्ड टू अंडरस्टैंड मेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें आपको 3 पॉइंट्स आपने लर्न किए हैं तो 3 पॉइंट्स लिखे हैं। जितने भी पॉइंट्स आपने याद किए हैं वो लिखना है आपको एंड 3 मार्कर क्वेश्चन है तो आई विल सजेस्ट यू टू राइट 3 पॉइंट्स। आफ्टर दैट 26th क्वेश्चन है आपका, ये आपका पार्ट्स में है लेकिन ये इसमें आपको और की ऑप्शन मिली है। तो सेम इसमें भी जौन-सा आपको बेस्ट आता है, वो आपको अटेम्प्ट करना है। आपको स्टेटमेंट दी गई है, एन इंडिविजुअल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर टॉपिक में बी कॉन्ट्ररी टू हिज और हर बिहेवियर। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एविडेंस। इसमें आपको जो स्टेटमेंट दी गई है, उसको जस्टिफाई करना है और आपको एक एविडेंस देना है, आपको एक एग्जांपल देना है जो आपने लर्न किया है। वरना आप ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैल्यूज एंड बिलीव्स आर नॉट द सेम एज एटीट्यूड्स। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। इस स्टेटमेंट को भी आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज योर 3 मार्कर क्वेश्चन। ओके, ये 6 मार्कर नहीं है, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। अगर आप ये अटेम्प्ट करेंगे तो इसके 3 मार्क्स मिलेंगे, ये अटेम्प्ट करेंगे तो इसके। And moving on to your last question, Mehak is an important member of psychology group and has recently been selected to be a member of football team as well. What is the main difference between the group and the team that she's part of? So you have to explain it. And moving on to your last, no, section D. सेक्शन डी, ओके, सेक्शन डी में आपको और के ऑप्शन है फिर से। यहाँ से आपके 4 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। डिस्क्राइब द मॉडल व्हिच स्टेट्स दैट इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द 3 इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स। तो इसमें आपको और के ऑप्शन है, जौन-सा आपको बेस्ट एप्रोप्रिएट आता है कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन है जो मुझे अच्छे से आता है, ये क्वेश्चन तो मैंने अच्छे से किया है, तो वो आपको अटेम्प्ट करना है। यहाँ से आप यहाँ पे आपके 4 पॉइंट्स है, जितने भी पॉइंट्स है, आपका पैराग्राफ है, जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर है, वो आपको लिखना है। एंड द कल्चरल एनवायरनमेंट provides a context for intelligence to develop. How does the role of culture influence our understanding of intelligence? Explain. You have to explain here. Okay.
Now, moving on to your question number 29, which is a study found that 1/3 of British children at age 6 are afraid of snakes, even though it is rare to encounter snakes in British Isles. The children had never come in contact with snakes in a traumatic situation, but snakes were generated anxious response. How would Carl Jung's theory of personality explain the same? Throw some light on his theory. उसकी थ्योरी के बारे में बताना है, मतलब ये जो थ्योरी आपने पढ़ी होगी डेफिनेटली, तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है आपका। इसके बारे में आपको बताना है कि हाउ वुड कार्ल जंग्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी एक्सप्लेन द सेम। ये जो आपको स्टेटमेंट दी गई है, कैसे आप मतलब उसकी थ्योरी से रिलेटेड है, राइट? तो आपको इसकी थ्योरी प्रॉपर समझानी है, एक्सप्लेन करनी है। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो उतना ही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको और की ऑप्शन है। तो आपको देखना है कि आपको कौन-सा क्वेश्चन आता है। अगर आपको दोनों ही नहीं आते, सो मैं कुछ नहीं कर सकती उसमें, आपने प्रिपेयर नहीं किया है फिर अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आपको दोनों आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पेपर में दोनों ही अटेम्प्ट करने बैठ गए हो। आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपका ओवर अटेम्प्ट का भी नोट चढ़ सकता है, राइट? तो आपका ओवर अटेम्प्ट भी चढ़ जाता है, इसीलिए आप प्लीज़ एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, अगर आपकी और की ऑप्शन है। Now your question number 31. An 8-year-old child is showing aggressive and disruptive behavior in the class. As a student of psychology, what techniques would you suggest to help modify the child's behavior? आपको क्या लगता है कि कौन सी टेक्निक्स होंगी कि चाइल्ड का भी उस चाइल्ड का बिहेवियर मॉडिफाई हो, राइट? तो ये भी 4 मार्क का क्वेश्चन है। नाउ दिस इज योर हिंदी पार्ट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू योर सेक्शन ई, व्हिच इज योर सेकंड लास्ट सेक्शन। तो इसमें आपको 32 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है। सेक्शन एफ में आपका केस स्टडी आ जाता है। ओके, सो सेक्शन ई में है और की ऑप्शन दी गई है, इसमें से अकॉर्डिंगली जो भी आपको क्वेश्चन अच्छे से आता है वो आपको अटेम्प्ट करना है अपने पेपर में। एंड इसमें ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आपको जितने भी पॉइंट्स आते हैं लिख दो, अगर कुछ नहीं भी आता, जितने भी पॉइंट्स आते हैं ना आपको उसके बारे में, जितना भी आपको नॉलेज है एटलीस्ट लिख दो, एटलीस्ट कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट? तो आप कुछ कुछ लाइन्स, कुछ भी जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेबल कुछ भी लिख दो, लेकिन ये नहीं कि आप कुछ भी लिखे जा रहे हो, है ना, किसी और चैप्टर का आंसर लिख दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप उसके रिलेटेबल ही लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिखते जा रहे हैं, गाने लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। यू हैव टू अटेम्प्ट योर आंसर केयरफुली, ओके? अब हमारे पास आता है सेक्शन एफ। इसमें आपको एक केस स्टडी दे रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, रीड द केस स्टडी एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब आपको ये केस स्टडी जो है, ये आपको प्रॉपर्ली रीड करनी है। अगर आप चाहते हैं, इसको वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए गए हैं 2023 में बोर्ड के एग्जाम में। तो आप इसको पॉज़ करके क्वेश्चंस देख सकते हैं। क्या-क्या क्वेश्चंस हैं एंड आप इस पेपर को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके? ओके, तो अब हमारे 33 और 34 उन्होंने जैसे कि बोला कि 33 और 34 केस बेस्ड है। ओके। सो अब हम 33 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमने आइडेंटिफाई करना है कि मोहसिन को क्या डिसऑर्डर है एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है? और उसको डिस्टिंग्विश करना है कि जो मोहसिन को जो डिसऑर्डर हो रहा है, वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से कैसे अलग है। ठीक है? तो हमने उनका डिफरेंस भी बताना है। और क्या ऑप्शन है, इसमें अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये अटेम्प्ट करें, ये वाला क्वेश्चन आता है तो ये अटेम्प्ट करें। तो बी पार्ट में क्या है, हाउ आर द सिम्पटम्स दैट मोहसिन इज एक्जिबिटिंग डिफरेंट फ्रॉम अ मोर सिवियर फॉर्म ऑफ दैट डिसऑर्डर। ठीक है? इसमें भी आपको डिफरेंस ही बताना है कि जो मोहसिन एक्जिबिट कर रहा है, वो कैसे डिफरेंट है। जो बहुत ज़्यादा सिवियर फॉर्म में वो डिसऑर्डर अगर होएगा तो। तो ये हमारे दोनों जो हैं ये 2-2 मार्क्स के हैं। तो अगर आपको ये आता है तो ये कर लो अटेम्प्ट, इसके 2 मार्क्स हैं, अगर आपको ये आता है तो ये अटेम्प्ट कर लो। ठीक है? इन दोनों में से एक ही करना है। Now moving on to your question number 34. In order to understand Hussein's disorder, what do psychologists refer to classify psychological disorders? ठीक है? तो इसमें आपको वो करना है, क्लासिफाई करना है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। ओके, तो ये भी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है एंड आपको ये केस बेस्ड स्टडी पढ़नी है। आई एम टेलिंग इट टू यू अगेन एंड अगेन। अगर आप वीडियो को पॉज़ करना चाहते हैं एंड आपको आप रीड करना चाहते हैं, प्लीज़ रीड इट एंड अच्छे से अटेम्प्ट करना है। आफ्टर दैट ये आपको हिंदी में दे रखा है, ये केस बेस्ड स्टडी। ओके? नाउ ये आपकी दूसरी केस स्टडी है, ठीक है? इसको ये इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन्स हैं और 2-2 मार्क्स होंगे हर एक क्वेश्चन के। ये देखिए 2-2 मार्क्स है हर क्वेश्चन के। तो ये है श्रीकांत बोला वाज़ बोर्न, नेबर्स इन द विलेज सजेस्टेड दैट हिज पेरेंट्स मोटो हिम। तो ये आपको ऐसे-ऐसे करके पूरी केस स्टडी पढ़नी है, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है? तो ये जो स्टडी है, केस स्टडी है, आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है? एंड इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है आपका? लेट मी रीड इट टू यू। We can see that Shrikant has the ability to adopt, shape, and select the environment. Identify the theory of intelligence that would best support our understanding of Shrikant's intelligence. तो ये आपको 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो क्या कहते हैं, उस बेसिस पे आपको अपना आंसर अटेम्प्ट करना है और लिखना है, ठीक है? श्रीकांत इज स्टैंडिंग टॉल, लिविंग बाय हिज कन्विक्शन दैट if the world looks at me and says, Shrikant, you can do nothing, I look back at the world and say, I can do anything. According to Gardner's multiple theory of intelligences, which kind of intelligence explains this? Discuss this intelligence in brief. अब आपने गार्डनर्स मल्टीपल थ्योरी पढ़ी होगी, कोई इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई किसी चैप्टर में आई होगी, तो उस थ्योरी से रिलेटेड आपको बताने की कौन सी इंटेलिजेंस का काइंड है, ये जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये कौन सी इंटेलिजेंस का काइंड है एंड आपको उस काइंड का जो इंटेलिजेंस है उसको डिस्कस करना है ब्रीफ में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये 2 मार्क का क्वेश्चन है।
तो आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना आंसर लिखना है, ठीक है? So this was all about psychology paper, question paper. So this is all about psychology paper. Now let's move on to your next paper. Okay, so let's move on to your next physical education. So इसका मेरे पास सेट 4 है आपका. I didn't get any set 1 or 2, है ना? मेरे को कोई सेट नहीं मिला, सिर्फ मेरे को यही वाला सेट मिला. Wait, let me just convert my pen actually. Okay, it's done. Okay, so ये है आपका फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12th का क्वेश्चन पेपर, बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो हमें 2023 में आया था. एंड दिस इज योर सेट 4. ये आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है जो थ्योरी का. ओके, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्वियसली 70 मार्क्स का है एंड टाइम अलाउड इज 3 आवर्स. सो आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई है पेपर स्टार्ट करने से पहले. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन साइकोलॉजी पेपर, तो आप उसमें से देख लीजिए अगर आपको कुछ भी लाइक डाउट है या कुछ भी ऐसा कुछ लगता है आपको कि यू शुड आस्क, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नाउ सेक्शन ए में आपका ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी. आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. यू हैव टू आइडेंटिफाई द आसन एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स. तो जो विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स नहीं है उनको ये वाला जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये अटेम्प्ट नहीं करना है. आपको ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. राइट नाउ मूविंग ऑन टू योर ओके, सो ये हिंदी पार्ट है आपका. मूविंग ऑन टू योर सेकंड क्वेश्चन. ये सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्कर है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रैजेक्टरी. तो इसमें से जो भी आपने पढ़ा है चैप्टर्स में वो आपको करना है, ठीक है? अब नेक्स्ट है आपके ये 1 मार्कर क्वेश्चन है. 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वेट, फोर्स, वेलोसिटी और रेजिस्टेंस. ओके, सो इसमें से जो भी आंसर करेक्ट है वो आपको लिखना है. विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन गेम्स लाइक जूडो एंड रेसलिंग. तो कौन सी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी होती है जो रिक्वायर्ड होती है गेम्स खेलने में, जैसे कि जूडो और रेसलिंग में कौन सी एबिलिटी होती है, ठीक है? तो ओरिएंटेशन एबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, अडैप्टेशन एबिलिटी या डिफरेंशिएशन एबिलिटी. So the answer you think is the correct one. You have to answer that. Okay, ये आपका हिंदी में है. अब आपके assertion reason आ गए, जैसे आपने हिंदी में देखा. Given below are the 2 statements. आपको 2 statements दे रखे हैं. कैसे दे रखे हैं? सबसे पहले आपको assertion दे रखा है, फिर reason दे रखा है. मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि आपको पहले स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर आपको रीजन पढ़ना है अच्छे से, फिर आपको जो भी करेक्ट लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है, वो आपको मार्क करना है इन 4 ऑप्शंस में से. राइट, तो फिर ये है आपका सबसे पहले स्टेटमेंट क्या देखिए. एग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इज नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल टू लिव एंड स्ट्रगल फॉर हायर अचीवमेंट्स. राइट, इसके बाद आपका रीजन क्या है. एग्रेशन इज इनएविटेबल एंड इनसेपरेबल इन स्पोर्ट एक्टिविटीज. सो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट का जो रीजन दिया है ये सही है कि नहीं, जो भी आपको इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट लगता है वो आपको करना है, ठीक है? नाउ 10th क्वेश्चन. रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, गिव एनर्जी, रिपेयर सेल और फ्रॉम प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज. ये आपके 1 मार्कर क्वेश्चन है. 11th 12th 13th आपके सारे 1 मार्कर क्वेश्चन है. 14 तक 14 क्वेश्चन है. नॉकआउट टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज क्या कहलाता है इन चारों में से, ठीक है? ओके, मैच भी आ रहे हैं आपके इसमें. ओके, 15th क्वेश्चन आपका फिर से 1 मार्कर है. 16th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. मैच द फॉलोइंग. इसमें आपको लिस्ट 1 दे रखी है और आपको इसमें लिस्ट 2 भी दे रखी है. पहले आप लिस्ट 1 पढ़ लीजिए. नॉक नी गेनुवैल्गम. एंड लिस्ट 2 इज इंक्रीज एक्सैजरेशन ऑफ बैकवर्ड कर्व. Kyphosis, wide gap between knees when standing up with feet together. Lordosis, knees touch each other in normal standing position. Bow legs, inward curvature of spine. अब इसमें क्या करना है आपको? You have to choose the correct option from the following. तो ये आपको दे रखे हैं ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो आपको क्या लगता है कि जो ये फर्स्ट लिस्ट दे रखी है, फर्स्ट है, राइट? ये जो फर्स्ट है क्या है? नॉक नी एंड गेनुवैल्गम, राइट? तो आपका ए ऑप्शन क्या है कि फर्स्ट जो है वो 3 से मैच करना चाहिए, सेकंड 1 से, थर्ड 4 से या फोर्थ सेकंड से. आपको लगता है कि ये करेक्ट सीरीज है, ये करेक्ट ऑर्डर है, तो आप इसको मार्क करेंगे. अगर आपको लगता है कि फर्स्ट मतलब फर्स्ट जो है ये इसका फर्स्ट आंसर और सेकंड का जो है उसका आंसर है थर्ड, सेकंड जो है इसका थर्ड आंसर है. अगर आपको लगता है कि थर्ड थर्ड का फोर्थ है और एंड फोर्थ का थर्ड है, सॉरी फोर्थ का सेकंड है, तो आप इस हिसाब से मैच करेंगे. अगर आपको लगता है कि ये करेक्ट है तो आप ये करेक्ट करेंगे. अगर आपको लगता है ये तो ये. तो मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे आपको मैच करना है, ठीक है? आपको लगता है अब जैसे डी ऑप्शन आपको दे रखा है कि आपको लगता है फर्स्ट जो है वो सेकंड है, फर्स्ट का जो है सेकंड है, ठीक है? सेकंड का क्या है? थर्ड, इन्होंने बोला. थर्ड का क्या है? फोर्थ. एंड फोर्थ का क्या है? फर्स्ट. तो अगर आपको ये सीरीज करेक्ट लगती है, ये पेयर करेक्ट लगता है, तो आपको ये मार्क करना है, ठीक है? और इनमें से जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको मार्क करना है. ऐसे ही ये 17th क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है एंड इसका आपका एक ही नंबर है. ओके, अब आ जाते हैं हमारे 18th क्वेश्चन पे. मेनार्क इज रिलेटेड टू एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन, टाइम ऑफ प्रेगनेंसी और स्पाइनल डिफॉर्मिटी. अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं भी बता सकती हूँ. इसका आंसर ए होगा, एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन इन वुमेन. नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इसका आंसर होगा बी, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन. जो आपका मेनोपॉज होता है वो आपका एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन होता है. मेनार्क जो है आपका वो स्टार्टिंग होता है और क्या कहते हैं मेनोपॉज जो होता है वो आपका
एंडिंग होता है। सो इसका आंसर होगा बी। आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, सो मैंने पढ़ा हुआ है, सॉरी आई वाज लिटिल कंफ्यूज। हाँ, तो इसका जो मेनार्क है वो बिगिनिंग है, एंड मेनोपॉज होता है वो आपका एंडिंग होता है। तो इसका आंसर बी होगा, एंड ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ओके, अब आपका हिंदी में आ जाता है। ओके, अब आपका सेक्शन बी आ जाता है। इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। ठीक है, तो ये आपका 1+1 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गोल सेटिंग। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिस्ट डाउन इट्स टाइप्स। आपको डिफाइन करना है फ्लेक्सिबिलिटी को एंड उसके टाइप्स भी लिखना है। तो ये 1+1 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है एलुसिडेट एनी 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। किन्हीं 4 फ्रैक्चर्स को आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। सेम 23 what is BMI, calculate BMI of a child whose weight is 72 kg and height 1.68 meters। तो आपका ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो ऐसे ही आपका सेक्शन बी है। इसमें से जोन से भी आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से, आपको 6 नहीं, एक सेकंड, हाँ, आपको 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इसमें से जोन से भी आपको 5 क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, उसके बाद नाउ मूविंग ऑन टू योर सेक्शन सी। इसमें से भी आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये आपके 3 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ पे से स्टार्ट हो जाते हैं। सो 25th क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट है पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज इज एडवांटेजेस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जिसे आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है और 6 एडवांटेजेस देना है। आफ्टर दैट मूविंग ऑन टू 26 क्वेश्चन नंबर राइट द फंक्शंस ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन के एंड मेंशन देयर सोर्सेस। इसमें 1.5 प्लस 1.5 आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऐसे ही आपको अकॉर्डिंगली इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट भी आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है विच इज हाउ कैन वी एनहांस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ सेल्फ टॉक एंड सेल्फ एस्टीम। आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 29 था है आपका, ये भी 3 मार्क्स का है। तो यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन है आपको वो आपके 3 मार्क्स के ही हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राउंड शोल्डर्स डिफॉर्मिटी, सजेस्ट एनी 4 करेक्टिव मेजर्स फॉर राउंड शोल्डर्स। ठीक है, कि आपके राउंड शोल्डर्स को कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो आपको 4 करेक्टिव मेजर्स आपको यहाँ पे देने हैं। तो ये आपकी 26 27 28 29 30, ओके 25। तो आपके 6 दे रखे हैं आपको, जोन से भी 5 बेस्ट आते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट सेक्शन इज योर डी। यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। 31st क्वेश्चन है आपको ऑन द बेसिस ऑफ अबव फिक्सचर। ये जो आपको फिक्सचर दे रखा है इसके बेसिस पे आपको आंसर करने हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, व्हिच मेथड इज शोन इन द पिक्चर टू ड्रॉ फिक्सचर इन लीग टूर्नामेंट। अच्छा, ये आपके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और ये आपका 4 मार्क्स का है। ठीक है, आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, इन लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट विनर विल बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं। 7 टीम्स पार्टिसिपेट इन अ लीग टूर्नामेंट, नंबर ऑफ मैचेस विल बी प्लेड, कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके, ये वाला क्वेश्चन जो है वो सारे स्टूडेंट्स को करना है। एंड ये क्वेश्चन जो है या विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स को करना है, ये आपको नहीं करना है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। एक्सप्लेन द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ एनी 4 कमिटीज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज अ स्पोर्ट्स इवेंट। तो ये वो लोग करेंगे। ठीक है, 32 है आपका, पिक्चर्स दे रखी है आपको। ए है स्टेशनरी बॉल एंड बी है आपका मूविंग बॉल। ठीक है, बेस्ड ऑन योर अबव स्टडी एंड योर नॉलेज आंसर द क्वेश्चन। आपको ऐसे अकॉर्डिंगली आंसर करने हैं। ये भी आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड आपको और क्या ऑप्शन है इसमें, व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज मूविंग विद अ सर्टेन वेलोसिटी द प्लेयर हैज टू अप्लाई रिटार्डिंग फोर्स टू ब्रिंग द बॉल एट रेस्ट इन हिज हैंड्स, व्हिच न्यूटन्स लॉ इज अप्लाइड इन दिस इलस्ट्रेशन। कौन सा न्यूटन का लॉ इसमें अप्लाई किया गया है। या तो आप ये करें चारों, या फिर आपको पास ऑप्शन है कि आपने ये स्टेटमेंट दी गई है उन्होंने और बताने कि कौन सा न्यूटन का लॉ इसमें लगा है। ठीक है, तो या तो आपको ये करना है या तो आपको ये करना है, आपकी चॉइस है, यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, अब आपको ये विजुअली इंपेयर्ड के लिए ये नहीं करना है आपको। ठीक है, एंड नाउ मूविंग ऑन टू योर 33 क्वेश्चन। इसमें भी आपको पिक्चर्स दे रखे हैं और आपको पिक्चर्स देख के हु वाज द फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स, ये सारे आंसर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं और आंसर देने हैं। ठीक है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है आपका। इसमें ओके, इसमें आपको ऑप्शन है 4th क्वेश्चन में सिर्फ डी पार्ट में कि या तो आप ये अटेम्प्ट करिए वरना ये आंसर करें। द मोट ऑफ पैरालंपिक्स इज। ठीक है, आप अगर आपको या तो ये करें या तो ये करें। ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ये नहीं करना। ठीक है, सेक्शन ई पे आ जाते हैं। इसमें आप कोई भी 3 क्वेश्चन जो आपको अच्छे से आते हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। इसमें आपके आएंगे 5 मार्क का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये चारों जो हैं और भी हैं। ओके, ये लास्ट है। ये चारों जो हैं इसमें से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो उनसे भी आपको अच्छे से आते हैं। पहला क्या है, लिस्ट डाउन एनी 4 आसन्स यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। प्रोसीजर को प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ एनी वन ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक डायग्राम। स्टिक डायग्राम प्रॉपर शो करना है, बनाना है। ठीक है, what is the purpose of Wrigley and Jones fitness test? Explain the procedure of its any 2 test items in detail. Detail में explain करना है। Next है define strength and explain any 2 methods to develop it. Last question है कि what is friction? Write the advantages and disadvantages of friction by giving suitable examples from sports. इसमें definition है, advantages देने हैं, disadvantages के with the suitable examples, इसमें आपको examples mention करने हैं। So this was all about your physical education question paper. And there you have it, insightful glimpses into the question papers of psychology and physical education. Before we wrap up, I want to make your exam preparation even more accessible. In the comment section below, I'll be attaching the PDFs of these question papers, ensuring you have them at your fingertips.
But wait, there's more. If you find it beneficial, I'm also offering answers in PDF format. Just let me know in the comments if you'd like that extra helping hand.